So, very good morning to one and all present at your own place on virtual platform. I once again welcome you all in this a new morning with a new session. So today we are going to see the session, or we are going to see on Google Classroom what exactly it is and how we are going to execute it and how to make a good wonderful class for our students, and let us make work easier and simpler. So here we go with the presentation. Google Classroom. So we know that there are 5 components of online teaching. They are learning management system. It may be Google Classroom. It may be Moodle. It may be Edmodo. Then we are having video recording in the form of e-content. We have live class interactivity. Then student engagement. Can we do the student engagement? And the fifth one is assessment and evaluation. Among these 5 components, today we are going to see only the first component, that is the learning management system. So what exactly the learning management system is for you is, that is, it's an online platform. Just give me a minute. Yes. So it's an online platform where teachers create classes and courses in the virtual mode. Now, what a teacher can do using LMS, he or she can organize the class topic wise online, can add materials, can add readings, can create assignments. Now, assignments can be created with the help of rubrics also, that is, some score guidelines, can evaluate the assignments, can create the quizzes, start the discussion forum with the students, and final grading of a student is also possible along with the communication with the class. So these all facilities the Google Classroom give it to you. तो आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? It is how to create a Google class, how to upload material to the class, how to set up a grade book, how to add students to the class, and what is the process of creation and evaluation of assignment. And along with that, we are going to see what is rubric assignment, how to create rubric assignment, how to evaluate rubric assignment, how to create quiz assignment, and how to disable your class code. So taking 9 points into consideration, we are going to begin with the Google Classroom, how to create it, how to upload material, how to set up a grade book. ये आज सारी हम चीजें देखने वाले हैं one by one with all these steps. So in short, what I can say is कि teachers को अगर online इस particular situation में हमें classes create करने हैं, as COVID has permitted us to go for the online classroom, we find that Google Classroom हमारे लिए एक simpler, easier, user friendly learning management system है, जिसमें हम क्लास में स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फीडबैक लिख सकते हैं, सारी क्लासेस को एट वन प्लेस पे मैनेज कर सकते हैं. सपोज 4 teachers are teaching in one semester, then all the 4 classes are accommodated at one place and it becomes easier for the student to access all the classes. So यहाँ पे second important feature which is very important for us is classrooms integrate करते हैं with the Google tools. So there are Google tools like Google Docs, Google Slides, Google Sheets, and Google Drive. All these are interconnected with these particular Google Classroom. तो हमें अगर connect करना है Google Slides को Google Classroom से, we can easily post and place the Google Slides in the Google Classroom. We can easily make use of Google Drive with the Google Classroom. तो इस तरीके से ये jointly काम करते हैं दोनों भी. Now, why Google Classroom? Why not any other media, or why not any other platform? The reason is it is free for teachers, free for users, free for students. It is easy to learn and it is user friendly. It is collaborative tool जहाँ पे हम collaborate कर सकते हैं एक दूसरे teachers के साथ, and that too with the tools also. It works much simpler in Google environment. So we can work with Google Calendar, we can work with Gmail, we can work with Drive, we can work with quiz forms, etc. So now what are the things? कौन-कौन सी चीजें हैं जो हमें चाहिए Google Classroom को यूज करने के लिए? सबसे पहले टीचर के पास एक जीमेल आईडी होना चाहिए, स्टूडेंट के पास भी एक जीमेल आईडी होना चाहिए. अगर आप लोगों के पास पर्सनल जीमेल आईडी है और आपके पास इंस्टीट्यूशन का भी जी सूट का आईडी है, इन केस आपके इंस्टीट्यूशन के पास जी सूट है, गूगल सूट अकाउंट है, तो आप इंस्टीट्यूशन के गूगल सूट अकाउंट्स को यूज कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आईडी लिखा है XYZ
@hrdc.edu.in। तो सपोज आपके पास ऐसी कोई गूगल सूट आईडी है जो गूगल वालों ने आपको बना के दी है आपके डोमेन नेम पे, आप वो आईडीज भी यूज कर सकते हैं और एक्स्ट्रा फीचर्स का लाभ ले सकते हैं। जब हम पर्सनल आईडी यूज करते हैं तब हम गूगल मीट की क्लास डायरेक्टली गूगल क्लासरूम से चालू नहीं कर सकते, लेकिन जब अगर हमारे पास डोमेन आईडी है तो हम उससे डायरेक्टली गूगल मीट की क्लास भी शुरू कर सकते हैं अलोंग विद द गूगल क्लासरूम प्लेटफॉर्म। दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंसेस। So now we are going to see how to create a Google class. So this is the link. And if in case you feel that you have any questions, any queries, you can ask in between also, or if you wish, let me complete the entire topic and then you have certain questions, certain queries, you may ask. So shall I go? Yes, with your due permission. Yes, anyone amongst you? Yes, ma'am. Yeah, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes. Am I clearly audible today? Yes, ma'am. yes. Yes. You're audible. Yes. So let us see in detail what exactly the Google Classroom is. तो सबसे पहले हम इस लिंक को क्लिक करते हैं. I am clicking on this link, or I shall do one thing. Just a second. Okay, so this is the link. मैं इस लिंक को क्लिक कर रही हूँ. जैसे ही मैं इस लिंक को क्लिक करती हूँ, आप अगर चाहें तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं. यहाँ पे आप गूगल क्लासरूम अगर URL में टाइप करेंगे ये ऊपर में, तो आप इसको एंटर करके भी यूज कर सकते हैं. ये जो है classroom.google.com, तो classroom.google.com पे आपको क्लिक करना है. नाउ जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपको आपकी जीमेल आईडी के साथ इसको एक्सेस करना है. तो यहाँ पे मैं 2 अकाउंट्स पैरेलली चलाऊंगी, एक स्टूडेंट का और एक टीचर का. तो जो स्टूडेंट का अकाउंट है वो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज पे चलेगा और जो टीचर का अकाउंट है वो मेरा गूगल क्रोम पे चलने वाला है. ऑलराइट, तो ये मैं टीचर का अकाउंट यहाँ पे बना रही हूँ. तो ये टीचर के अकाउंट के साथ मैंने इसको लॉग इन किया है. नाउ आई एम एंटरिंग द पासवर्ड ऑफ okay. So this is the first step. Now at present you can see one class is already there. So हमें इसको अभी कोई बॉदरेशन नहीं देनी है. हमें अभी जो स्टेप परफॉर्म करनी है that is प्लस साइन. Okay. So am I audible? Yes. Yes. Yes, yes, yes. So I'll go once again with these steps. So the first step is आपको यहाँ पे Google Classroom टाइप करना है. ओके, ये आपकी पहली स्टेप है. दूसरी स्टेप है ये classroom.google.com में जाना है. जैसे ही हम यहाँ पे चले जाएंगे हमें अपना आईडी और पासवर्ड्स लिखना है. प्लीज म्यूट योर माइक इज ऑन. ऑल राइट. Yes, sir. One another program is also going on. So sorry for all the inconvenience for background voice. But yes, after 5 minutes it will get stopped. Okay. Yes. So now the next step is you have to click on plus sign. Now, after clicking on plus sign, what you will see is there is an option of creating a class. So click on create class. Now you have to select this check box. ये check box आपको select करना है and finally continue पे click करना है. यहाँ पर आने के बाद आपको आपकी क्लास का नाम टाइप करना है. फॉर एग्जाम्पल PBA SEM2 माइक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल. या आपका साइंस का क्लास है, मैथ्स का क्लास है, आर्ट्स में है, आप कॉमर्स में है. इट ऑल डिपेंड्स आपके सब्जेक्ट का कौन सा क्लास है. सो यू राइट द प्रोग्राम नेम, देन सेमेस्टर एंड देन फॉलोड बाय आपके क्लास, आपके कोर्स का नाम, दैट इज सब्जेक्ट नेम. सेक्शन फॉर A and B if it's both
देन इट्स ओके, आप डाल सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ऊपर में क्यों लिखा है, द रीजन, जब स्टूडेंट को दिखेगा तो उसको क्लियर कट यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ उसका क्लास या सेमेस्टर भी आसानी से दिख जाएगा। आपके ऊपर ऑप्शन है, रूम नंबर इज ऑल्सो ऑप्शनल। तो अगर आपको एक एमसीक्यू दिया जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में कि गूगल क्लासरूम में क्लास क्रिएट करते समय हमें कौन सी फील्ड मैंडेटरी रखनी है, कंपलसरी रखनी है, तो आंसर विल बी क्लास नेम ओनली. Okay, 4 options will be given to you. You have to choose only the class name. So side by side, we are preparing MCQs for your further exam also. Okay. So now we will click on create button. I'll click on create button. Now we can see that a class has been created with the name BBA SEM 2 MEF. Is it okay till here? Yes. Yes, madam. Yeah, Yes, you can madam. mention Yes. in chat box also, because chat box also, if it's clear. Voice is breaking. All right. No, madam. It is clear. ओके फाइन। सो ये आपकी क्लास का इंटरफेस है। सबसे पहले हम इंटरफेस से रूबरू हो जाते हैं एंड देन हम अपना स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज करेंगे। जो 9 पॉइंट्स मैंने वहां मेंशन किए थे वो 9 पॉइंट्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये क्लास का इंटरफेस है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा 3 लाइन्स का। जितनी भी क्लासेस आप क्रिएट करेंगे सारी क्लासेस यहाँ पे आएंगी। सेटिंग्स करके एक आइकन है जो कि यहाँ पे भी दिया है और टॉप राइट में भी आप देख सकते हैं सेटिंग्स करके एक आइकन है, हम उस पे भी जाएंगे अभी। ये 4 टैब्स हैं जिनके ऊपर आज हम काम करने वाले हैं। स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब नोटिफिकेशन एंड आप कोई अनाउंसमेंट अगर पोस्ट करना चाहते हैं, जो आप स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप इस टैब पे काम करेंगे। अगर आपको मटेरियल पोस्ट करना है, असाइनमेंट्स देने हैं, क्वेश्चंस देने हैं या क्विज फॉर्म क्रिएट करना है, तो आप क्लास वर्क में जाएंगे। पीपल मतलब कौन से लोग आपकी इस पर्टिकुलर क्लास के लिए टीचर्स का रोल प्ले करेंगे एंड स्टूडेंट्स का रोल प्ले करेंगे, जिनको आप इनवाइटी बनाने वाला है। एंड मार्क्स मीन्स अल्टीमेटली इवैल्यूएटिव प्लेटफॉर्म है, ये इवैल्यूएटिव टैब है जहां पे आप ग्रेड्स को देख सकते हैं। ओके, सो व्हाट वी विल डू इज, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दे रही हूँ, दैट इज व्हाट, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे बहुत बारीक से देखेंगे तो ये एक स्क्वायर है, इसको डिस्प्ले बॉक्स बोलते हैं। ये क्लास कोड है, ये क्लास कोड ही आपको सभी को सर्कुलेट करना है। लाइक राइट नाउ आई एम शेयरिंग दिस क्लास कोड विथ यू ऑल सो दैट यू कैन बी द स्टूडेंट ऑफ माइंड इन दिस क्लास। ओके, सो दिस इज द क्लास कोड विच आई एम शेयरिंग विथ यू। दूसरा ऑप्शन है, अगर मैं इस कॉपी इनवाइट लिंक पे क्लिक करती हूँ और आप सभी को ये कॉपी इनवाइट लिंक भेजती हूँ, तो आपके पास ये दूसरा रास्ता भी आ जाता है कि आप इसमें अपना जीमेल का आईडी और पासवर्ड डाल के इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, मैं आपको यहाँ से वन बाय वन, यहाँ ये मेरा टीचर का प्लेटफॉर्म चालू रहेगा और यहाँ गूगल क्रोम में मेरा स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म चालू होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं ये क्लास को ज्वाइन कर लेती हूँ इस कोड के साथ। तो साइड बाय साइड में आपको स्टूडेंट का भी बताती जाऊंगी और आपको ये दोनों एक साथ दिखते जाएंगे, टीचर में कैसे दिख रहा है, स्टूडेंट में कैसे दिखेगा। सो ऑल दिस विल बी सीन टू यू। सो व्हाट आई विल डू इज, I'll just copy this particular link, paste it here, press enter. नाउ ऑलरेडी मेरा यहाँ पे रिंकी मूलचंदानी के नाम से लॉगिन था, इसलिए उसने मुझे लॉगिन कर दिया, अदरवाइज वो मेरा आईडी पासवर्ड पूछेगा। ऑल राइट, यहाँ पे ऑलरेडी ये रिंकी मूलचंदानी के नाम से ये दूसरा आइकन है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला आइकन थोड़ा डिफरेंट है और जो आइकन ऑलरेडी है वो है। तो ये रिंकी मूलचंदानी के नाम से यहाँ पे आइकन ऑलरेडी है। अब ये पूछ रहा है मुझसे कि वुड यू लाइक टू ज्वाइन द क्लास एज ए स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे क्लास को ज्वाइन करूंगी। तो अगर आप किसी को लिंक दे रहे हैं और वो पर्सन लिंक डायरेक्ट गूगल क्रोम में डाल रहा है यूआरएल बार पे, यूआरएल एड्रेस पे, तो वो अपनी यहाँ से आईडी को चेंज करके अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकता है। यहाँ से अपनी आईडी को सिलेक्ट करके अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन क्लास पे उसको क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी बता देती हूँ जो आपको आपके स्टूडेंट्स को बताना है। दैट इज व्हाट,
आपके स्टूडेंट ने सीधे गूगल क्लासरूम में जाना है. योर स्टूडेंट हैज टू गो डायरेक्टली टू द गूगल क्लासरूम. यहाँ पे गूगल क्लासरूम उसने टाइप किया गूगल सर्च इंजन पे, और फिर उसने classroom.google.com ये जो वेबसाइट है वहां पे उसने क्लिक किया. उसको क्लिक करने के बाद आपको उसने बताना है कि यू हैव टू यूज योर जीमेल आईडी. नाउ स्टूडेंट इज यूजिंग हिज और हर ओन पासवर्ड. नाउ ये प्लस साइन जो है, ये प्लस साइन पे स्टूडेंट क्लिक करेगा. प्लस साइन को जैसे ही क्लिक करेगा उसको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ज्वाइन क्लास, क्रिएट क्लास. वो स्टूडेंट है इसलिए उसको अभी ज्वाइन करना पड़ेगा. मैम आई थिंक आई एम ऑडिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू बिकॉज Yes, yes, very much clear, ma'am. yes, yes, yes. So you have to click on join class. Now जो क्लास कोड मैंने आपको बताया था, ये टीचर के प्लेटफॉर्म का जो क्लास कोड है, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और ये मैं स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पे आके यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ. और फाइनली मैं राइट हैंड साइड में जाके ज्वाइन करूंगी. तो अब मैं ये क्लास को सक्सेसफुली ज्वाइन कर लेती हूँ. तो ये क्लास अब मेरे पास आ गई, जो कि मेरे टीचर के एंड पे दिख रही है क्लास. सेम मुझे भी यहाँ पे गूगल का, आप सिर्फ ये राइट हैंड साइड में ये जो आइकन है रिंकी मूलचंदानी का, RINKY का, ये आपको फॉलो करना है स्टूडेंट का. और जो ये आर कलर का, सॉरी आर नाम का आइकन है, ये टीचर का एडमिन है. ये टीचर एडमिन है और ये स्टूडेंट है जिसने ये क्लास यूज करनी है. हम लोग यही करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को वहीं का वहीं पे मिल जाएगा, इन केस अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो. ऑल राइट, सो व्हाट वी विल डू इज नाउ वी विल मूव टू अनदर सेक्शन. ये अपकमिंग बोर्ड है. अगर कोई भी आपने असाइनमेंट्स ड्यू दिया है या क्वेश्चन ड्यू दिया है या क्विज ड्यू दी है, तो उसके सारे नोटिफिकेशन यहाँ अपकमिंग सेक्शन में आएंगे. अब जैसे मैंने कहा कि गूगल क्लासरूम में हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ. कोई अनाउंसमेंट है या कोई कम्युनिकेशन है तो हम वो कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम अनाउंस समथिंग पे क्लिक करेंगे. क्या करना है हमें? अनाउंस समथिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी अनाउंसमेंट देनी है, लाइक वेलकम टू माय गूगल क्लासरूम, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स सेमेस्टर 2 विल बी स्टार्टिंग. ये जस्ट एक एग्जाम्पल है. यू कैन राइट योर ओन इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो, वेलकम मैसेज ऑल्सो, एंड फाइनली क्लिक ऑन पोस्ट. फाइनली हमें किस पे क्लिक करना है? पोस्ट पे क्लिक करना है. तो अब आप देख रहे हैं कि 11:20 की ये वाली जो पोस्ट है ये यहाँ पे आ चुकी है. अब स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पे भी, स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पे भी ये पोस्ट दिखेगी. अभी मैं रिफ्रेश कर रही हूँ इसको, तो ये स्टूडेंट के पोस्ट पे भी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये स्टूडेंट के स्ट्रीम सेक्शन में भी ये पोस्ट देखने को मिल रही है. इज इट ओके? अब अगर स्टूडेंट ने कोई कमेंट देना है या स्टूडेंट को कुछ अनाउंस करना है, तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट भी टीचर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है सेम प्रोसीजर को फॉलो करके. अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, दैट इज व्हाट, हाउ टू सिलेक्ट द थीम. ये जो थीम आप देख रहे हैं, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट थीम पे क्लिक करना पड़ेगा. सो यू सिलेक्ट एनी ऑफ द थीम. यहाँ पे जितने भी थीम्स के ऑप्शंस दिए हैं ये प्री डिफाइंड थीम्स हैं, ये आपकी कस्टमाइज थीम नहीं है. तो सपोज आपको अगर लगता है कि मुझे ये वाली पर्टिकुलर थीम देनी है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए एंड देन सिलेक्ट क्लास थीम को आपको क्लिक करना है. यू हैव टू क्लिक ऑन द सिलेक्ट थीम, then you have to click on the select class theme. Now your theme is changed. So this is all about the theme changing. But if in case you feel that I need to upload any photo from my local computer or local PC, so what is to be done? So you have to click on upload photo and then finally select a photo from your computer. And whatever photo you are having in your computer right now, I am not having any such photo which could be placed here. So this option you can select it from your own also. Okay, I'll be doing one thing. I'm just using the
I'm not having any photo with me right now, any suitable photo for this class. So, but yes, you can try this option at your own end. You can click on upload photo. You can select this photo, and whatever photo you feel, you can use it. So just for the sake of dummy photo, I can use one dummy photo for you. Like ये photo है. अभी ये फोटो है, लेकिन ये किसी काम की फोटो नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट ऑफ यूज, क्योंकि इसमें कुछ भी कवर नहीं हो रहा है आसानी से. तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी फोटो ले सकते हैं, उसको रीसाइज वगैरह कर सकते हैं, एंड फाइनली सिलेक्ट क्लास थीम कर सकते हैं. तो जैसे हमने नॉर्मली लाइब्रेरी की क्लास थीम को सिलेक्ट किया, वैसे ही हम फोटो को सिलेक्ट करेंगे only from our local computer. So this is all about the photo uploading and selecting the theme. Now coming to the right hand side section, that is settings. Now this is very important for us. तो settings पे हमें click करना है. अब यहाँ पे अगर आप कुछ changes करना चाहते हैं तो आप बिंदास कर सकते हैं. If you would like to change anything from here, you can make a changes and all the changes will be applicable in your classroom. Now second important thing, if you wish to give a student the invitation link from here also, you can just simply click on copy invitation link. You can click on copy invitation link, and finally what you can do is you can type it, or sorry, just paste it in your WhatsApp group or paste it on the email, and you can send that email to the students also. Now this is one thing which is very important for us, is that is, if you want to turn off your Google code and the invitation links, in case अगर आपको लगता है कि आपके 250 स्टूडेंट्स जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो हो चुके हैं, अब आप इस क्लास कोड को टर्न ऑफ कर सकते हैं और कोई भी स्टूडेंट फिर यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकता. ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिंग है. अगर आपको लगता है कि आपको आपका कोड रीसेट कर देना है, तो आप कोड को क्या करेंगे, रीसेट करेंगे. और जैसे ही आप कोड को रीसेट करेंगे, जो मेरा पहला कोड था वो डिसअपियर हो गया, और अब ये जो नया कोड है ये मुझे डिस्प्ले होने को मिल रहा है. तो अगर आप इसका कोड देखना चाहते हैं तो ये कोड मेरा अभी जो है ये न्यू कोड है. अब जिस किसी भी स्टूडेंट को क्लास मेरी करनी है तो वो ये नए रीसेट कोड के साथ कर सकता है क्लास को join. All right, so this is all about the setting section, and we have to nothing to do with the marking section, because marks automatically grade किए जाते हैं Google Classroom में जब जब आप assignments देंगे, जब जब आप test देंगे और उनकी marking रखेंगे. So all the settings were with related to class, with related to invitation code and with related to invitation link. तो यहाँ तक हमारा ये अभी हो गया क्लास सेटिंग्स. अब हम आगे बढ़ते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज हमारी क्लास में स्टूडेंट्स कौन से हैं. वी नीड टू ऐड देम. नंबर 1, वी नीड टू फाइंड ऑल्सो कि क्या किसी ने मेरी क्लास को इन्विटेशन लिंक से ज्वाइन किया है क्या, या क्लास कोड के थ्रू मेरी क्लास को ज्वाइन किया है क्या. इफ यस, देन आई मस्ट फाइंड आउट कि कैसे किया है. तो सबसे पहली स्टेप थी हम गूगल क्लासरूम में गए. दूसरी स्टेप थी हमने classroom.google.com पे क्लिक किया. तीसरी स्टेप थी हमने वहां पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला जीमेल का. चौथी स्टेप थी हम राइट हैंड साइड में प्लस आइकन को क्लिक किए, एंड फिर उसके बाद पांचवी स्टेप थी हमने क्रिएट क्लास पे क्लिक किया. जैसे ही हम क्रिएट क्लास पे क्लिक करते हैं वैसे ही हमारे सामने एक बॉक्स आता है जिसमें हमें सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है विथ रिगार्ड टू क्लास रूम एटसेट्रा, बट क्लास का नाम हमारे लिए मैंडेटरी है. जैसे ही हम क्लास को क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट बटन पे क्लिक कर लेते हैं, हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाता है. और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 4 टैब्स देखने को मिल रहे हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल, मार्क. स्ट्रीम मीन्स जहाँ पे आप स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं in the form of notification, in the form of notices, in the form of any circular, in the form of writing any comments or any update जो आपको स्टूडेंट को पास करना है. और स्ट्रीम सेक्शन का एक और खास फायदा ये है कि आप जो भी अपडेट करेंगे आपकी गूगल क्लासरूम में, वो सारी की सारी चीजें 1 by 1 टाइमिंग के साथ स्ट्रीम पे ही देखने को मिलेंगी. इट्स वन काइंड ऑफ पोस्ट का, आप चीजें पोस्ट कर रहे हैं वो पोस्टिंग आपकी यूजर को क्विकली, जैसे हम किसी मुझे
SMS मुझे तुरंत दिख जाते हैं और फिर मैं उस पर क्लिक करता हूँ या करती हूँ। सिमिलर वेज के ही स्ट्रीम का काम है। स्ट्रीम भी आपके लिए वही काम करता है। जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं एज अ टीचर, आपके स्टूडेंट को उसके स्ट्रीम सेक्शन में पता चल जाएगा कि किस टाइम पे मेरी मैम ने क्या क्या मेरे लिए अपडेट्स किए हैं। All right, so now next one is, I'm not going to classroom right now. I will go first to the people and then marks and then classroom. ओके, सो फर्स्ट आई विल शो यू मार्क्स। मार्क्स में अभी कुछ भी नहीं है बिकॉज हमने अभी कोई असाइनमेंट्स नहीं दिए हैं, कोई क्वेश्चंस क्रिएट नहीं किए हैं, तो हम इसको बाद में देखेंगे। नाउ कमिंग टू दिस, आई कैन सी दैट वन ऑफ द फैकल्टी हैज जॉइंड मी, दैट इज आरती मैडम हैज जॉइंड माय क्लास। सो नाउ शी इज आल्सो द स्टूडेंट एंड मी माई सेल्फ रिंकी मुलचंदानी इज आल्सो द स्टूडेंट। यस यस मैम, यस सर, yes Nitin sir, would you like to ask me something? Hello, all right, okay, so अब यहाँ पे बात ये है कि टीचर्स क्यों दिए गए हैं, why teachers are being given here and why students are being given here. टीचर्स इसलिए दिए हैं, सपोज ए सेक्शन में मैं पढ़ाती हूँ, बी सेक्शन में आरती मैम पढ़ाते हैं और प्रीति मैम पढ़ाते हैं, तो इन केस मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ही बार क्लास बनानी पड़ेगी। लेकिन हम भी क्या करते हैं, हम एक क्लासरूम में बहुत सारे टीचर्स चले जाते हैं, so we do not separate ourselves according to the students. All right, क्लास इज वन ओनली। यहाँ पे भी क्लास, ऑनलाइन में भी एक ही क्लास रहेगी, बट यस टीचर्स में भी डिफरेंट। तो सपोज मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स नाम का जो सब्जेक्ट है वो मेरे साथ कोई और पर्सन भी शेयर कर रहा है, तो इन दैट केस व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू इनवाइट एनी वन टीचर हु इज टीचिंग दैट सब्जेक्ट। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करूंगी, आई विल क्लिक ऑन दिस प्लस साइन and now I'm inviting someone else in this, let us say, okay, ये मैं इनको इनविटेशन भेज देती हूँ। ये ICT-training29@gmail मेरा ही आईडी है। ओके, मैं इनको इनविटेशन भेज देती हूँ, तो मैं इनवाइट पे क्लिक कर लूंगी। तो अब क्या होगा, जब ये पर्सन अपने ईमेल में जाएगा और ईमेल में जाने के बाद मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो ये अभी ऑप्शन आपको फेडेड दिखाई दे रहा है, ये एक्टिव मोड में आ जाएगा, जैसे मेरा ऑप्शन अभी एक्टिव मोड में है। सो इन दिस वे हम अपने साथ अपने कलीग को इनवाइट कर सकते हैं जो सेम सब्जेक्ट शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, सो दैट अब अगर कल चल के वो सेम क्लास में लॉगिन होके कोई पोस्ट करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो उनके पास एक फैसिलिटी मिल जाएगी कि उनको अलग से कुछ और क्रिएट नहीं करना है, वो उसी क्लासरूम में जाके अपने क्लासरूम के जो भी असाइनमेंट्स हैं, जो भी कोर्सेज हैं या जो भी डिटेल्स हैं, जो भी मटेरियल है वो अपलोड करना चाहते हैं, वो भी साथ साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड अपने हिसाब से कर सकते हैं। सपोज 2 यूनिट मुझे शेयर करने को बोले हैं और 2 यूनिट आरती मैम को बोले, सो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट की पोस्टिंग में यहीं पे आके करूंगी, इसी क्लासरूम में आके। लेकिन जब आरती मैम की टर्न आएगी तो व्हाट शी विल डू, शी विल अगेन लॉग इन टू दिस सेम क्लासरूम and she will post her material and I will be accountable for my material, she will be accounting for her material. So in this way हम क्लासेस भी शेयर कर सकते हैं एक दूसरे टीचर के साथ। ना सपोज अगर आपको स्टूडेंट्स को ऑफिशियली इनवाइट करना है, एक होता है अनऑफिशियल इनविटेशन, एक होता है ऑफिशियल इनविटेशन। जो मैंने आपको क्लास के यहाँ पे कोड को कॉपी करके स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में डालने को बोला था, ये है अनऑफिशियल इनविटेशन, मतलब डायरेक्ट इनविटेशन। ऑल राइट, अब इसमें ऐसी संभावना है कि बच्चा किसी और एनोनिमस बच्चे को अगर कोड दे देता है, इन केस ही और शी गिव्स द कोड to any other student who is not a part of your class, then in that case any unofficial student may be registered to your class. So what is the tip number 1 for today's session is कि always try to write the email IDs of all the students. You all might be having the Excel sheet in which email IDs of all student is being given. So what you can do is you can click on this people's tab. आप पीपल टैब पे क्लिक करेंगे, आप इनवाइट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और एक साथ 100 बच्चों के आईडी, 200 बच्चों के आईडी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ऑल राइट, तो सपोज अब यहाँ पे मुझे कोई अपना ईमेल आईडी यहाँ पे शेयर करेगा, जो मैं यहाँ पे डेमो के लिए किसी को एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करूँ, बिकॉज
मेरी तीनों आईडी अभी हो चुकी हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट। अब आप मुझे बता दीजिए। CJG CJG 8 8 AMT AMT @gmail.com. @gmail.com। ऑल राइट, सो दिस इज एन ऑफिशियल आईडी, ये यहाँ पे दिखा दी इन्होंने। ऐसे ही आप दूसरे स्टूडेंट की भी आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, एंड फाइनली ये आईडी को आपको क्या करना है, ये आईडी जो भी आई है आप इसको इनविटेशन भेज सकते हैं। सर, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद योर आईडी? नो ना, बिकॉज No. इनवाइट इज नॉट कमिंग हियर। Because invite is not coming here. Just a second. Write my ID, ma'am. Yeah, CJ. Yes, now it has come. Okay, ये इनवाइट बटन अगर फेड हो जाता है तो मतलब वो आईडी का कुछ प्रॉब्लम है, आप फिर से एक बार रीटाइप करके देखिएगा। Okay, so if anyone else also would like to get invited, he or she can invited. अब ये fade है, now this option is faded while other options are activated. Why? The reason is ये सारे लोग जो भी मेरे अभी स्टूडेंट्स कैटेगरी में आपको देखने को मिल रहे हैं, सारे फैकल्टीज, रिस्पेक्टेड फैकल्टीज, ये इन सभी ने मेरा ये क्लास कोड के थ्रू ज्वाइन किया है, क्लास कोड के थ्रू ज्वाइन किया है। इज इट ओके? इज इट ओके? क्लास कोड के थ्रू ज्वाइन किया है। तो जब तक ये मेरा इनविटेशन अपने मेल में नहीं जाते, जब तक ये सर अपने मेल में नहीं जाएंगे, इनबॉक्स पे क्लिक नहीं करेंगे और वहां से क्लास को ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक ही कैन नॉट बी माई स्टूडेंट। सो आई एडवाइज यू ऑलवेज IDs of all students in one go. 230 students can be registered in your class in one Google Classroom. So what you can do is you can completely copy and paste all the email IDs and in single go just click on invite button, और इससे क्या होगा, उनको सभी स्टूडेंट्स को एक ऑफिशियल ईमेल आ जाएगा आपकी तरफ से। So that is what the official way, or which we can say is an authorized way to invite your student. So we have done with stream, we have done with people. We cannot do anything with marks unless and until we cannot create any item or upload anything. Okay, so now these students will only be eligible to access my classroom, access my material, access my videos, access my PDFs, or access my articles, anything. So shall we move ahead? Is there any question in these two tabs? Otherwise we shall move ahead. Questions, ma'am. Go ahead. Okay, so I'll go ahead with your due permission. Now we are going to see one by one all the things which are readily available for our classroom. So number one, very first is click on classwork. ये एरिया ऐसा है जहां पे आप सब चीजें कर सकते हैं। इट मीन्स यू कैन क्रिएट टॉपिक्स, यू कैन क्रिएट मटेरियल, you can create quiz assignment, you can create rubrics assignments, you can create non-rubrics assignments, as well as you can reuse the post also. So what we have to do is, हमको क्या करना है, हमको क्लास वर्क पे क्लिक करना है। क्लास वर्क में क्लिक करने के बाद सबसे पहले क्रिएट बटन पे क्लिक कीजिए। पहली हमारी क्लास, जब भी हम ऑनलाइन क्लास किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारी क्लास एक सिंक्रोनाइज क्लास होनी चाहिए, एक सिस्टमैटिक क्लास होनी चाहिए, एक बहुत अच्छी क्लियरली नीट एंड टाइडी क्लास होनी चाहिए, सो दैट पर्टिकुलर टॉपिक के अंडर में मेरे पर्टिकुलर चीजें सिस्टमैटिक तरीके से सेट हैं। अगर मैं वीडियोस नाम का टॉपिक बनाती हूँ तो उसके नीचे वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, वीक 6, वीक 9 ऐसे वीडियोस आएंगे। अगर मैं स्टडी मटेरियल के नाम का टॉपिक बनाती हूँ तो उसके अंदर वीक 1 स्टडी मटेरियल, वीक 2, वीक 3 लाइक वाइज ऐसा आना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपका
अपना चॉइस रहेगा। आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 वाइज टॉपिक बनाने हैं, वो भी आप कर सकते हैं। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 भी बनाना है। कोई कोर्स आप चला रहे हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स अपने कॉलेज का, तो उसके लिए भी आप गूगल क्लासरूम बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारी ऑफिशियल क्लासेस के लिए ही गूगल क्लासरूम बने। हम डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट में एक पॉलिसी फॉलो करते हैं कि हम जो भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हैं या वैल्यू एडिड कोर्सेज करते हैं, उनका भी हम मटेरियल गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर देते हैं, सो दैट स्टूडेंट कैन execute it properly, and that too with माइक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक क्रिएट करती हूँ कि यहाँ पे सिलेबस एंड पेपर पैटर्न मुझे बच्चे को देना है। ऑल राइट, सो मैंने उसके लिए टॉपिक बना दिया। नाउ सेकेंड टॉपिक मैंने यहाँ पे बनाया है, लेट अस से वीडियोस मुझे यहाँ पे देने हैं। तो ये वीडियोस मैंने दे दिए। मैं वीक वाइज वीडियो दूंगी, जैसे जैसे मेरा सेमेस्टर में वीक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं हर हफ्ते वीडियोस अपने अपलोड करूंगी और बच्चा हर हफ्ते वीडियोस को एक्सेस करेगा एक एक हफ्ते के। देन नेक्स्ट इज यहाँ पे मैं दे स्टडी मटेरियल। इसका जो यूज रहेगा ना वो आपको अभी विद इन 5 to 10 मिनट्स में इसकी फंक्शनैलिटी और इसका एडवांटेज पता चल जाएगा, बहुत अच्छा है। देन नेक्स्ट वन इज मैंने वीडियोस दे दिए, स्टडी मटेरियल दे दिया। नाउ उसके बाद आई एम गिविंग द असाइनमेंट्स। ओके, ये असाइनमेंट करके मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक बनाया। नाउ व्हाट एक्स्ट्रा आई कैन गिव इज असेसमेंट। मैं असेसमेंट दे सकती हूँ। और उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रिजल्ट्स करके भी एक कैटेगरी देनी है जहां मैं सारे रिजल्ट्स को डिस्प्ले करूं पीडीएफ फॉर्म में, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। सो आई कैन क्लिक ऑन इट। एनीथिंग एल्स बिल्कुल आपके ऊपर है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू गिव। नाउ सी व्हाट व्हाई आई हैव गिवन दीज टॉपिक्स ओनली, व्हाई आई हैव नॉट गिवन यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 up to module 4. The reason is because my institute follows the week wise study material uploading pattern, the week wise video uploading pattern, and after every unit completion we used to give one assignment, and after completion of one unit we used to give unit test also. So I forgot to prepare the one more topic, that is unit test is also there. Now what we can see is जो टैब मैंने सबसे लास्ट में बनाया है, टॉपिक सबसे लास्ट में बनाया है, वो सबसे पहले आ गया, और जो टॉपिक मैंने सबसे पहले बनाया था सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, वो टॉपिक अभी सबसे नीचे है। अब मुझे इसको मूव अप एंड मूव डाउन नेविगेशन कैसे करना है, उसके दो रास्ते हैं। द वेरी फर्स्ट वे इज आप ये 3 डॉट्स को क्लिक कीजिए एंड मूव अप कीजिए, बट ऐसा आप कब तक करते जाएंगे, सपोज आपकी लिस्ट बहुत बड़ी है, तो ये एक पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, ठीक उसी प्रकार से अगर आपको मूव डाउन करना है तो आप मूव डाउन भी कर सकते हैं। ओके, इट्स नॉट लाइक कि मूव अप इज ओनली द ऑप्शन एंड नेविगेशन के लिए फ्रॉम दीज 3 डॉट्स। बट इफ यू वांट कि यू शुड बी वेरी क्विक इनफ to adjust all these topics, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, simply click on this and just drag it and drop it to the place where you want. Just drag it and drop it. तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ इस पर्टिकुलर को क्लिक करके रख देंगे, लेफ्ट माउस बटन आपको क्लिक करके रखना है, और लेफ्ट माउस बटन आप तब रिलीज करेंगे जब आपको पता है कि ये पर्टिकुलर पोजीशन पे टॉपिक अराइव हो चुका है। के बाद अब मैं यूनिट टेस्ट और रिजल्ट्स तो नहीं दूंगी, डेफिनेटली मैं स्टडी मटेरियल दूंगी सबसे पहले। तो मैं सेकंड नंबर पे स्टडी मटेरियल देना चाहती हूँ, तो मैं स्टडी मटेरियल को अब थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर रही हूँ। सो आई एम मूविंग स्टडी मटेरियल। देन आफ्टर मूविंग द स्टडी मटेरियल आई वुड लाइक टू मूव द वीडियोस, so I'll give the videos, I'll move it. Okay, then after videos I'll give the assignments. So now my sequence is getting ready as per my convenience. So उसके बाद मैंने असेसमेंट देने हैं, फिर यूनिट टेस्ट देने हैं, फिर रिजल्ट्स देने हैं। तो असेसमेंट और यूनिट टेस्ट में क्या ये रहेगा, मेरे कॉलेज का रूल है कि एवरी सैटरडे हम एक 10 मार्क्स का गूगल फॉर्म अपलोड करते हैं बच्चों के लिए गूगल क्लासरूम में, और वो गूगल फॉर्म जो रहेगा 10 क्वेश्चन का, वो हफ्ते भर की टीचिंग में जो भी हम टीचर्स ने पढ़ाया है उसके बेस पे वो 10 क्वेश्चन रहेंगे मल्टीपल चॉइस, तो उससे स्टूडेंट की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसलिए हम वो असेसमेंट ले देंगे। ऑल राइट, तो ये यूनिट टेस्ट हम
वीक का पोर्शन कंप्लीट होने के बाद देंगे एंड रिजल्ट्स जो भी जनरेट होंगे वो स्टूडेंट्स के हैंडी रेफरेंस के लिए सभी बच्चों के मार्क्स और उनके नाम पीडीएफ फॉर्म में जनरेट करके दे देगी। तो ये हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सो हमने ये चीजें बना ली। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि जब कभी भी हम अपना मटेरियल क्रिएट करेंगे तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में डालने वाले हैं? स्टडी मटेरियल में। वीडियो क्रिएट करूंगी तो उसको वीडियो कैटेगरी में डालूंगी, असाइनमेंट्स क्रिएट करूंगी तो उसको असाइनमेंट्स टॉपिक के अंदर डालूंगी। तो अगर मेरे टॉपिक्स बने हुए रहेंगे तो मेरे लिए आसान होगा उस पर्टिकुलर कैटेगरी में उस पर्टिकुलर मटेरियल को पोस्ट करना। सो दिस इज व्हाट द एसेंस ऑफ मेकिंग द टॉपिक। सो इज द फर्स्ट स्टेप क्लियर? शैल आई मूव अहेड? Yes? Yes. Yes. So this is how the to first. place my worksheet? Sorry. How do I place my worksheet in Google Classroom? Means in a Yes, study sir. material. Yes, that I am going now, right now. That will be my next step, sir. Yeah. We will be doing Okay, each and okay. everything. Don't you worry, sir. We will be doing each and everything. Okay. So is the first step topic creation is clear? So then I will move to the next statement. Okay. Now the next thing is I want to post the material. Now this is this is very crucial. See, it is not mandatory that material can be in Excel form or in PDF form. Material can be any link also of any article which you want a student to refer for your class. Material वो article की link भी हो सकता है जो आपके students आपकी class के लिए refer करने वाले हैं। Material वो YouTube का video भी हो सकता है जो आपके student आपकी class के लिए refer करना चाहते हैं। मटेरियल वो गूगल ड्राइव की कोई भी फाइल हो सकती है जिसको स्टूडेंट्स आपकी क्लास के लिए यूज करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स शुड यूज दिस फॉर पर्टिकुलर क्लास। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी। So what I'll do is I'll go to classwork. Okay, I will go to classwork and I'll click on create. Then third step I'll click on material. Now I'll write here what kind of material it is. So I know that ki my college follows the week 1, week 2, week 9, week 10 pattern. So every week I have to post the material. So suppose in the first week I am posting the material of economics only. So this is I will give the title as student के साथ वो टाइटल जाएगा तो इस नाम से आएगा week 1 study material. Okay, I am not mentioning any unit name. I am not mentioning because I don't know when my unit will get completed. So it is better that week wise मैं यहाँ पे material post करूँ. आप चाहें तो यहाँ पे टाइटल भी दे सकते हैं like unit 1 जो भी आपका टॉपिक है. ओके, आप यहाँ पे टॉपिक भी दे सकते हैं, फाइन. बट मुझे यहाँ पे क्या देना है, मैं वीक वाइज मटेरियल अपलोड कर रही हूँ तो आई विल बी राइटिंग हियर वीक वाइज मटेरियल. ओके, एनी इंस्ट्रक्शन इफ यू वुड लाइक टू गिव you can give students the instructions also. Okay, now how we are going to see or categorize this study material. ये study material किस टॉपिक के अंदर आएगा? तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में आपको ये जो टॉपिक की गैलरी दिख रही है, टॉपिक का ड्रॉप डाउन बटन दिख रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लिक ऑन इट and now you can see that all the topics which you have created already, they are placed here. If you want to create any new topic, you can click on this particular thing and you can create any new topic also. Okay, fine. But yes, already जो टॉपिक है उनसे मुझे सिलेक्ट करना है सिर्फ स्टडी मटेरियल. तो क्या होगा, अब मेरी क्लास में सिंक्रोनाइज्ड वे में बहुत अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से ये पर्टिकुलर हेड इस कैटेगरी में ही जाएगा, किसी और कैटेगरी में नहीं जाएगा और मेरी क्लास मेसी नहीं रहेगी, मेरी क्लास अच्छे से वेल प्लान्ड रहेगी. सो दिस इज व्हाट द एसेंस ऑफ राइटिंग द टॉपिक. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, क्या ये पर्टिकुलरली आप इसी क्लास के लिए मटेरियल पोस्ट कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आपके दो सेक्शंस हैं ए एंड बी और ए सेक्शन का आपने अलग क्लास अलग नीचे वाला क्लास बनाया, तो ऐसे केस में आप दोनों क्लासेस को सिलेक्ट कर दीजिएगा तो वन गो में आपका ये मटेरियल दोनों क्लासेस में साइमल्टेनियसली पोस्ट हो जाएगा. आपको दूसरी क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं है. बट राइट नाउ मेरा सिर्फ इसी क्लास से कंसर्न है तो आई विल क्लिक ऑन इट. नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट, ये आपने टाइटल दे दिया, आपने टॉपिक यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, आपने क्लास सिलेक्ट कर लिया. ऑलराइट, नाउ आपका मटेरियल कैसा है और आपको क्या ऐड करना है और किस तरीके से करना है.
अब मुझे अगर पीडीएफ फाइल सिर्फ यहाँ पे देनी है, या जैसे का एक्सेल की फाइल या वर्कशीट की फाइल यहाँ पे कैसे दे सकता हूँ, तो उसका सिंपल तरीका है, या तो गूगल ड्राइव में वो फाइल होगी वहां से दे सकते हैं, या तो वो फाइल गूगल ड्राइव का लिंक होगा तो भी दे सकते हैं, या कोई आर्टिकल है उसका लिंक देना है वो भी दे सकते हैं। वो फाइल अगर आपके लोकल कंप्यूटर में रखा हुआ है वो भी दे सकते हैं। एंड यूट्यूब का अगर कोई वीडियो फाइल है जो इस पर्टिकुलर वीक 1 को बिलोंग करता है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आप वीडियो सेक्शन में डालिएगा, यहाँ पे डालने की जरूरत। तो अगर सर क्वेश्चन है मुझे एक्सेल फाइल डालनी है तो सर क्या करेंगे, अगर उनके लोकल कंप्यूटर से डालनी है तो वो तीसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे, फाइल। तो फाइल पे जैसे ही सर क्लिक करेंगे वहां पे सर को अपलोड बटन पे क्लिक करना है, एंड देन फाइनली ब्राउज बटन पे क्लिक करना है। अब ये जैसे सपोज दिस इज माय एक्सेल फाइल, ओके, दिस इज माय एक्सेल फाइल, दिस इज माय एक्सेल फाइल, दिस इज आल्सो माय एक्सेल फाइल, okay, so all these files which are of excel I want to get them uploaded. So I'll do select this particular file, click on open and finally upload करूंगी, बट राइट नाउ मैं इसमें एक्सेल फाइल नहीं कर रही हूँ, मैं पीडीएफ फाइल को ही करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टडी मटेरियल देना है। स्टडी मटेरियल मेरा एक्सेल में कोई भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपना मटेरियल नाम का फोल्डर जो बना के लाई हूँ मैं उसमें से यहाँ पे मटेरियल दे दूंगी। ऑल राइट, so I'll just go to desktop and I will find my related subject material, desktop, now I am having, okay, ये मटेरियल है मेरा, ऑलरेडी पीडीएफ में भी है, वर्ड में भी है। आप लोगों को आपकी फाइल्स रेडी रखनी पड़ेंगी। जब कभी भी आप गूगल क्लासरूम में कोई भी फाइल अपलोड कर रहे हैं, ensure it कि your file is ready. If it is a word file, make it ready. If it is a PDF file, make the PDF of the word only, convert it into PDF, because PDF files are very easily opened and accessed on mobile also. Have to see both the थिंग्स इनटू कंसिडरेशन कि स्टूडेंट के पास अगर लैपटॉप नहीं है और उसके पास अगर ये मोबाइल फोन है तो स्मार्टफोन पे पीडीएफ बहुत जल्दी खुल जाते हैं, बहुत आसानी से एक्सेस हो जाते हैं और स्टूडेंट के लिए रीडेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं यहाँ से स्टडी मटेरियल ले लेती हूँ। ये स्टडी मटेरियल मैंने ले लिया। ये सपोज 3 फाइलें मेरी स्टडी मटेरियल की हैं, तो मैंने इन तीनों को कंट्रोल की के साथ सिलेक्ट किया, कंट्रोल की प्रेस करके रखा है और अब सिर्फ मैं लेफ्ट माउस बटन क्लिक करती हुई जा रही हूँ, तो करके जाऊंगी वो सारी फाइल्स इन वन गो में मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। ऑल राइट, सो राइट नाउ जस्ट आई एम शोइंग यू द सैंपल ऑफ वन फाइल ओनली। तो ओपन, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरा स्टडी मटेरियल आ गया पीडीएफ का। ऑल राइट, तो ये पहला ऑप्शन हमने किया कि अगर लोकल कंप्यूटर से कोई फाइल लेनी है तो फाइल पे क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है, एंड देन फाइनली वो वाली फाइल सिलेक्ट करनी है जिसको अपलोड करना है और ओपन बटन पे करना है। ओपन बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे फाइल की प्रोसेसिंग हो जाएगी और फाइल यहाँ पे 1 बाय 1 आ जाएगी। ये पहला ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन, आपको स्टडी मटेरियल, अगर लेटेस्ट से कि जो भी आप यहाँ पहले यूनिट में पढ़ाने वाले हैं, मैं पहले यूनिट में डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन वो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने डिफरेंस तैयार नहीं किया है, बट यस गूगल के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं एंड आई वांट टू यूज दोस रिसोर्सेज, सो आई विल क्लिक ऑन प्लस साइन, okay, and I'll write here difference between, just give me 1 minute, okay, difference between माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। अब मुझे लगता है कि ये जो पहली वाली लिंक है की डिफरेंसेस की, इसको मैंने ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो URL ID आप देख रहे हैं ऊपर जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है की डिफरेंसेस वाला, ये URL ID को आपको सिलेक्ट करना है। अब इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, सिंपल,
यहाँ पे कहीं पे भी आप माउस का कर्सर रख दीजिए, ओके, एंड कंट्रोल प्लस ए फॉर एप्पल, कंट्रोल+A की प्रेस कीजिए और उसके बाद उसको कॉपी कर दीजिए कंट्रोल+C के साथ, एंड देन फाइनली आप अपनी क्लासरूम में जाइए, गो बैक टू योर क्लासरूम एंड ऐड पे क्लिक कीजिए। अब इस बार लिंक जनरेट कर रहे हैं, तो ये लिंक, ये रेफरेंस लिंक है, ये मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट मेरे नोट्स इसमें से भी पढ़े, क्योंकि ये वाली साइट के नोट्स मुझे अच्छे लगे, स्टूडेंट आसानी से इसमें से भी पढ़ सकते हैं। तो अब आपने स्टूडेंट के लिए मटेरियल सिर्फ अपने पीसी से, अपने कंप्यूटर की फाइल्स नहीं जनरेट करके दी हैं, उसको बाहर का भी रेफरेंस मटेरियल दिया है, तो उसका इंटरेस्ट और बढ़ेगा कि यस, एक्स्ट्रा फाइल्स आर बीइंग गिवन टू मी। सो दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। द थर्ड ऑप्शन, अगर आपकी सेम पीडीएफ जो मैंने यहाँ से अभी अपलोड की है, सेम पीडीएफ अगर मेरे गूगल ड्राइव में है, तो मैं गूगल ड्राइव पे क्लिक करूंगी। अब देखिए, जो मैंने आपको फीचर बताया था कि ये गूगल के सारे एप्स के साथ गूगल क्लासरूम काम कर सकता है, तो ये बहुत हैंडी टूल है हमारे लिए, हम इसको बहुत अच्छे से वर्चुअल क्लासरूम्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, माई ड्राइव में मैं सर्च कर लेती हूँ, बीबीए के नाम से मेरे पास बहुत सारे पीडीएफ्स हैं। तो ये देखिए, ये स्टडी मटेरियल के पीडीएफ्स यहाँ पे देखने को मिल गए। कैन यू सी? यस और नो? Yes. So these all are the study material files of mine. तो अपनी फाइल सिलेक्ट करनी, मैं उतनी सिलेक्ट कर सकती हूँ, एक एक फाइल सिलेक्ट करनी है तो मैं एक एक फाइल भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो सपोज अगर एक फाइल सिलेक्ट करनी है तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, आई हैव सिलेक्टेड दिस फाइल एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट। सो इन दिस वे यू कैन डू, बट ये बोल रहा है कि फाइल ये वाली ऑलरेडी अटैच है, इसलिए उसने अटैच करने नहीं दी। आप क्या कर सकते हैं, कोई दूसरी फाइल भी ले सकते हैं। सपोज आई एम टेकिंग दिस अनदर फाइल फ्रॉम द बीबीए, ओके, let me take this file because it is not published anywhere and this file। तो कंट्रोल की को मैंने प्रेस कर रखा है, माउस बटन क्लिक कर रही हूँ, तो कंट्रोल की को प्रेस करके रखा है और लेफ्ट माउस बटन अगर आप क्लिक करते हैं तो मल्टीपल सिलेक्शन ऑफ फाइल्स हो सकता है। सो नाउ आई विल क्लिक ऑन इंसर्ट, नाउ इट इज इंसर्टेड टू मोर फाइल्स बट फ्रॉम द गूगल ड्राइव। तो जब कभी भी हमें मटेरियल ऐड करना है तो हमारी प्रोसेस यही रहेगी। ऑलराइट, अब आपने गूगल ड्राइव भी दे दिया, आपने लिंक भी दे दिया, आपने फाइल भी दे दिया, लेकिन मैं यूट्यूब का वीडियो यहाँ पे नहीं देना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ स्टडी मटेरियल देना था और रेफरेंस लिंक देना था, मैंने यहाँ पे दे दिया। ऑलराइट, अब मुझे ये पोस्ट करना है कि सेव करना है कि शेड्यूल करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी। तो यहाँ तक सपोज आपने स्टडी मटेरियल इतना ही देना है, जितना आपको देना है ये आपकी रिक्वायरमेंट है, इट्स अप टू यू। Okay, so after doing this, what you have to do is you are having different option. Now what are the different options? Let us see them in detail. Very first option is post. अगर मैं इस मटेरियल को पोस्ट कर दूंगी तो ये डायरेक्टली बच्चे की स्क्रीन पे जो स्ट्रीम ऑप्शन है वहां पे दिखेगा कि 11:55 पे रिंकी मूलचंदानी ने ये पोस्ट किया है स्टडी मटेरियल के नाम से। ओके, लेकिन अगर मैं इसको सभी सेव किया हुआ रहे, कल परसों मुझे कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करने हैं, या मैं चाहती हूँ कि मेरे पास अभी इन द फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट सेव हो, तो मैं इसको ड्राफ्ट सेव करूंगी। तो जब हम ड्राफ्ट सेव करते हैं तो वो ड्राफ्ट सिर्फ हमारे लिए ही रहता है, स्टूडेंट के पास नहीं जाता है। ओके, तो आप इस पे आगे चल के भी काम कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली ईमेल को आप ड्राफ्ट करके रखते हैं लेकिन 2 दिन बाद फिर उसे भेजना है कुछ और चेंजेस करके, तो वैसा यहाँ पे भी कर सकते हैं। तीसरा है शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स हमारे कॉलेज में हमारे एचओडी मैम ने हमें एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि एवरी सैटरडे के इवनिंग में आप अपना मटेरियल शेड्यूल करके रखेंगे मंडे के लिए, ताकि जब आप मंडे को क्लास लेने जाएं तो आपको मंडे को पोस्ट करने की जरूरत नहीं हो, सिर्फ आप यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। ओके, अब मंडे कब आएगा, लेट अस सी इट फ्रॉम द कैलेंडर। लेट अस से मैं परसों के लिए रख रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये मटेरियल स्टूडेंट्स को एक्सेस करने के लिए परसों मिले, क्योंकि ये मेरी परसों की क्लास का मटेरियल है या नेक्स्ट वीक का मटेरियल है। तो मैं यहाँ से ये मटेरियल की डेट चूज करूंगी, लेट अस से 6th of August, और यहाँ पे टाइम मेंशन कर दूंगी कि 10 बजे क्लासेस शुरू। तो स्टूडेंट
अब 10 बजे मटेरियल क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, शेड्यूल करना, मतलब फ्यूचर डेट के लिए इसको शेड्यूल करना। तो यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा वीक 1 स्टडी मटेरियल शेड्यूल फॉर 6 अगस्त। अगर आपको शेड्यूल नहीं करना है तो आप यहाँ से शेड्यूल वाला क्रॉस हटा दीजिए, और अगर आपको डायरेक्टली पोस्ट करना है इमीडिएटली 11:55 पे, अभी इस पर्टिकुलर करंट टाइम पे, तो आप पोस्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, student will see the material in their streams immediately, so click on post option. So I'll click on this particular post option. Now what will happen, ये student का टैब है, ये Google Chrome student का टैब है। ओके, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। अब स्टूडेंट के स्ट्रीम पे एक पोस्ट दिखाई दे रहा है कि रिंकी मूलचंदानी पोस्टेड अ न्यू मटेरियल वीक 1 स्टडी मटेरियल। अब मैं स्टूडेंट होके इसको क्लिक करूंगी तो मेरे टीचर ने जो जो मटेरियल दिया है आसानी से देख सकती हूँ। मैं पहले मटेरियल को क्लिक कर रही हूँ। ओके, ये पीडीएफ फाइल है, ये मेरे सामने ऐसे पीडीएफ जनरेट होके आएगी with a proper system, proper fashion, along with the college का header, along with the course का नाम, along with the topic का नाम। अगर कोई वीडियो लिंक मुझे YouTube की देनी है तो मैं यहाँ पे भी दे सकती हूँ कॉपी पेस्ट करके YouTube की URL लिंक, ताकि बच्चा जब ये मटेरियल पढ़े तो उसको हैंडी हो जाए और वो यहीं का यहीं से क्लिक कर ले। तो ये मेरा पहला मटेरियल जो तैयार था को देता। अब इसको चाहती हूँ कि वो किसी वेबसाइट पे जाके अपना मटेरियल एक्सेस करे, तो वो वेबसाइट वाली लिंक को क्लिक करेगा और वापस से उसी वेबसाइट पे आ जाएगा जो वेबसाइट मैंने उसके लिए दी है। ऑल राइट, सो इन दिस वे स्टूडेंट कैन एक्सेस अवर मटेरियल। तो ये स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म था, ऑल राइट, और ये टीचर का है। तो मैं टीचर के में वापस से आ गई। अब टीचर को कैसे पता चलेगा कि तुमने क्या किया है, ये देखिए, ये स्टडी मटेरियल यहीं पे ही आ गया वीक 1। कल चल के आपको इसमें कुछ एडिट करना है तो आपको ये 3 डॉट्स, ये जो 3 डॉट्स है, इसको आप क्लिक करें कि नहीं मुझे रेफरेंस लिंक अभी नहीं देनी है, आपने यहाँ से रेफरेंस लिंक हटा दी और फाइनली सेव पे क्लिक कर दिया। सो इन दिस वे नाउ यू कैन पोस्ट योर मटेरियल। तो ये देखिए, अब सिर्फ 4 फाइलें यहाँ पे रह गई हैं जो स्टूडेंट को दिखेगी, और ये सेम मैसेज एडिटेड का ये स्टूडेंट की स्ट्रीम पे भी आएगा। अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट की स्ट्रीम पे भी ये सेम मैसेज अभी उसको भी दिखाई देगा कि माय टीचर हैज एडिटेड समथिंग एट 11:59। So this tool is very handy for us whenever we want to post the material to the classroom preparation. Now I think study material has been cleared. Shall I move ahead to the next points? Yes, yes. YouTube का कैसे करना है, मैं उस मटेरियल पे जा रही हूँ। अब हम दूसरा मटेरियल पोस्ट कर रहे हैं। मटेरियल पे क्लिक किया। Now this time week 1 videos. नाउ वीक 1 वीडियोस या तो मेरे कंप्यूटर से लेने हैं तो मैं फाइल पे क्लिक करूंगी, ओके, ब्राउज पे क्लिक करूंगी, और मेरे ये यूनिट 4 के ओन प्रिपरेशंस वाले वीडियो, तो सपोज मैं ये कोई भी एक वीडियो ले लेती हूँ। लेट मी टेक दिस वीडियो, ओके, ओपन पे क्लिक किया। अब मैं आपको एक सरल तरीका बताती हूँ। जब कभी भी हम लोकल कंप्यूटर से वीडियो अपलोड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो ऐसे केस में आप क्या करके रखिए, आप गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बना के रखिए अपना वीडियो के नाम का, और गूगल ड्राइव में एक दूसरा फोल्डर भी बना के रखिए स्टडी मटेरियल के नाम का। तो जब कभी भी अब आपको ऐड करना रहेगा, आप यहाँ से ऐड बटन पे क्लिक करके सीधे गूगल ड्राइव वाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा और वहां से कीजिएगा, तो वो बहुत कम मिलता है। अब ये हो गया एक, मैंने यहाँ पे वीडियो कर लिया। अब दूसरा वीडियो जो है वो मेरी फाइल का नहीं है, मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, मैं चाहती हूँ यूट्यूब का हो। तो यूट्यूब पे क्लिक किया मैंने। यूट्यूब में भी 2 ऑप्शन है, आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं लिंक को, जिसको हम बोलते हैं URL, ओके, या तो फिर आप सर्च भी कर सकते हैं पर्टिकुलर वीडियो को उसके नाम से। तो सपोज मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और सर्च बटन पे क्लिक कर दिया। Now if you want any of the video from this particular search box, make use of it. So if I want to use any video, let us say मुझे ये MIT के लेक्चर्स बहुत पसंद है, मैं MIT लेक्चर्स पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया। अब
क्या होगा, ये रिसोर्स जो स्टूडेंट अलग से जाके देखे, इससे अच्छा है कि हम उसको प्रोवाइड कर दे रहे हैं ये लिंक्स कि भाई तू इस लिंक में से देख, इसमें से पढ़, इसमें बहुत अच्छे से दिया है, बहुत सिंप्लीफाइड दिया है. सो नाउ ही और शी कैन रेफर दैट पर्टिकुलर लिंक ऑफ वीडियो. अगेन क्लिक ऑन ऐड, click on no URL, that is the uniform resource locator, that is the address of your file. Okay, now suppose if I go here and I type here microeconomics videos. Okay, now I'll go to video gallery. Okay, वीडियो सेक्शन पे जाऊंगी और मुझे लगता है कि ये वाला जो पर्टिकुलर खान एकेडमी का वीडियो है, ओके, ये वाला वीडियो मुझे बच्चों को देना है. तो मैं इसको क्लिक किया, मैंने इसको क्लिक किया, ये YouTube की जो लिंक है उसको भी क्लिक किया. अभी मैं बिंग सर्च इंजन पे हूँ, इसीलिए मुझे ये प्रोसेस करना पड़ रहा है. YouTube पे जाके भी कर सकते. तो सिंपल सा क्या फंडा है हमारा, ये जो YouTube के नाम से लिंक आएगी, ये URL, ये हमें कॉपी करनी है. ओके, इन केस अगर आपने पहले से ही कॉपी पेस्ट करके रखे हैं तो ऐसे केस में आप URL भी अपनी क्लास में दे सकते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील. तो आप अपनी क्लासरूम में जाइए, यहाँ URL पे क्लिक कीजिए और यही URL आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए. तो अब ये खान एकेडमी वाला वीडियो आ गया. ओके, एंड फाइनली क्लिक ऑन ऐड. तरीके, जो तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, जो वेज हैं, मैं आपको सभी डिफरेंट वेज के साथ रूबरू कराऊंगी, बिकॉज आई थिंक कोई भी ऑप्शन छूटना नहीं चाहिए. ऑल राइट, ये एक तरीका. अगर गूगल ड्राइव में कोई वीडियो रखा हुआ है, ऑल राइट, ये जैसे ड्राइव में कोई वीडियो अगर है आपके पास, कोई भी वीडियो, ये मेरा वीडियो है, लेट अस से ये मेरा वीडियो है, ये गूगल ड्राइव में रखा हुआ है, इसमें कोर्स ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है. तो इंसर्ट पे क्लिक किया मैंने. ऑल राइट, तो ये अब यहाँ पे एक तीसरा वीडियो भी आ गया. बट आई डोंट नीड टू गिव ऑल द स्टफ एट वन प्लेस. ठीक है, तो मैंने ये डिलीट कर दिया, एक ही वीडियो रखा है मेरा मैंने अपना. ओके, एंड नाउ सपोज लेट अस से यू वांट टू पोस्ट इट डायरेक्टली. ना ये किस कैटेगरी में जाएंगे, ये हम यहाँ से टॉपिक में जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे वीडियोस में. तो अब ये पर्टिकुलरली वीडियोस नाम की ये जो टाइटल है, ये स्पेसिफिकली इसी कैटेगरी में जाएगी, कहीं और यहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं होगा. ओके, फाइनली फॉर विच क्लास, फाइनली यू वांट टू सेव द ड्राफ्ट. अगर आप ड्राफ्ट सेव करते हैं तो देखिए कैसा दिखता है, वो भी देख लीजिए कैसा दिखेगा. ये ड्राफ्ट सेव्ड आपका हो गया. ये वीडियोस, ये एक्टिव मोड नहीं है बिकॉज इट इज अ ड्राफ्ट. शेड्यूल में भी एक्टिव मोड नहीं रहता है, तो यहाँ पे आपको पहचान दे देगा. तो ये कल चल के अगर मुझे कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, सपोज मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया. ओके, और अब मैं फाइनली पोस्ट करना चाहती हूँ, तो फाइनली मैं पोस्ट करूंगी. ये फाइनली मैंने पोस्ट कर दिया एंड एक बार फिर से मैंने पोस्ट पे क्लिक किया. अब मैं स्टूडेंट के चैनल पे जा रही हूँ. ओके, स्टूडेंट इसको URL को सिलेक्ट करके मैंने एंटर की प्रेस किया तो रिफ्रेश हो गया. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिंकी मूलचंदानी has posted a new material week 1 videos. So click on it. Now you can see the videos. So now if any student want to see my video, he or she can see my video as well. He or she can download my video also. All right, he or she can download my video also. Okay, but I am removing this video as it is an official video of mine. So what I'll do is I'll go to my platform, I'll click on edit and I'll remove it and I'll click on save. Okay, so if in case you want ki your student should not download your videos, that trick I will show you at the end. Fine, so in this way we can add the video. So now you can see one thing is very synchronized. सिलेबस एंड पेपर पैटर्न में सिलेबस वाली PDF फाइल में यहाँ पे मटेरियल में अपलोड कर दूंगी. कैसे करूंगी, क्रिएट मटेरियल, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगी सिलेबस एंड पेपर पैटर्न. ओके, ये इस नाम से जाएगी. ऐड करूंगी, अपने लोकल कंप्यूटर में एक फाइल रखी है सिलेबस की, ब्राउज करूंगी और फाइनली डेस्कटॉप से यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये डेस्कटॉप में गई, मैं यहाँ पे कोई तो भी एक फाइल में अभी अपलोड कर लेती हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिलेबस की फाइल है. ओके, ये सिलेबस की फॉर एग्जाम्पल फाइल है जो कि नहीं है,
एट प्रेजेंट नहीं है, बट आप लोग को ऐसे ही करना है जैसे हम करते हैं। अब यहाँ से मैंने टॉपिक पे चूज किया सिलेबस एंड पेपर प्रिपरेशन एंड फाइनली क्लिक ऑन पोस्ट. So in this way, what I can do is I can create any of the material, create any of the post also. Okay, so this way we can create the material. So I think topics and materials are clear. Shall we move ahead to questions and assignments? Yes, ma'am. Yeah. So now we will move on to the questions. Okay, so this is a teacher's platform. Fine. And this is the student's platform. Fine. So I am on teacher's platform right now. How you will identify I am on teacher's platform? R word is there. Okay, R letter is there, not word, R letter is there. And how you will identify I am on a student platform? This particular logo is there. All right. So what I will be doing right now is now moving to questions and then assignment. Now, what is the difference between question and assignment? See, whenever you are asking any question, if you want the student should write the answer of the question in a given box and that to post it to you, you can frame a question. You are asking something. Till now, you are posting something means that is material. If you want to post an assignment, you can post. You cannot ask assignment. You can ask a question from a student. Assignment की आप due date देते हैं. आप उसी समय नहीं बोलते कि बेटा मुझे अपने सवालों का जवाब दे. No, you can ask a student assignment only to complete it within a particular period of time. Suppose आज आपकी तारीख है 3 तारीख और let us say yes 3rd of August और आप चाहते हैं कि अगले हफ्ते तक 10 तारीख तक बच्चे ने असाइनमेंट जमा कर देना चाहिए, तो आप उस केस में असाइनमेंट को यूज करेंगे. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बच्चे से कोई क्वेश्चन का आंसर पूछूं, ओके, तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन. सो आई विल क्लिक ऑन क्वेश्चन. All right. Now see, first of all I am telling you this setting. जैसे ही मैंने क्वेश्चन पे क्लिक किया, आप टॉप राइट हैंड साइड में यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट कैन रिप्लाई टू ईच अदर. जो भी आप प्रश्न के ऊपर बच्चे आपस में एक दूसरे से रिप्लाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यस करने दीजिए, बिकॉज उनका कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा और उनको भी जानकारी मिलेगी. लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप उस सेटिंग को ऑफ कर दीजिए. और आप ये भी अगर नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट बार बार अपना आंसर बदले और फिर मुझे पोस्ट करे, तो आप इन दोनों सेटिंग्स को इट्स बेटर डू नॉट कीप इट. ओके, नाउ आई वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन. सो क्वेश्चन कैटेगरी ऑलरेडी दी है. देखिए, अब तक मैं इसको डायरेक्टली टाइप कर रही थी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आई एम राइटिंग हियर क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स? If you are an accounts teacher or stats teachers, how you will accommodate this question? There is one way. जैसे मैंने आपको मटेरियल ऐड करना सिखाया था, वैसे ही आप अपनी अकाउंट्स की फाइल भी ऐड कर दीजिए, किसी प्रश्न की, किसी न्यूमेरिकल की. वो फाइल आपने पहले वर्ड डॉक्यूमेंट में बना देनी है या पीडीएफ में बनानी है या गूगल कर दीजिए. ओके, एंड फाइनली जैसे हमने मटेरियल के लिए अपनी यहाँ से फाइल अपलोड की थी, वैसे ही आप यहाँ पे उसको यूज कीजिए एज अ सपोर्टिंग फाइल for your question. Okay, for stats, for accounts, for maths, etc. But subjects like theory, you can ask directly question from student. What do you mean by microeconomics? Okay, if I am writing this, asking this question, then that too, student को कोई डेट देनी है क्या कि वो कब तक इसका आंसर दे सकता है? अगर कब तक इसका आंसर दे सकता है, तो उसके लिए उसको ड्यू डेट चुननी, टीचर को ड्यू डेट बतानी पड़ेगी. तुम 5 तारीख तक सवालों का 4 तारीख तक सवालों का जवाब दे सकते हो. समय है लेटेस्ट से 11 बजे रात तक तुम मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हो. सो इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम ड्यू डेट एंड टाइम, यू कैन आस्क दैट आल्सो. ओके, सो सपोज मैंने बोला कि कल तक आप दे सकते हो, तो आप कल तक दे सकते हो. पॉइंट्स आपके कितने हैं एक क्वेश्चन के? लेटेस्ट से आई एम सेइंग 10 मार्क्स, सो आई विल राइट हियर पॉइंट्स. ये टॉपिक, अब ये टॉपिक तो मैंने कहीं मेंशन किया ही नहीं है, ना मेरा असाइनमेंट है ना मेरा स्टडी मटेरियल है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट टॉपिक कर देती हूँ और ओके, डायरेक्टली आई एम क्रिएटिंग हियर क्वेश्चन. तो ये अब क्वेश्चंस एंटर, just a minute, why it is not allowing me, it is not allowing me. आप असाइनमेंट में
या सॉरी मटेरियल में टॉपिक ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो ओके यहाँ पे अगर डायरेक्ट अलाउ नहीं कर रहा है, एंटर प्रेस करने नहीं दे रहा है, इन केस नहीं करने दे रहा है तो हम बाहर जाके एक टॉपिक अलॉट कर देंगे और उसमें इसको डाल देंगे। ओके, now again for which class? For one class, for all student 10 marks. Now this is all prepared from my side. कोई सपोर्टिंग फाइल देनी है तो सिंपल ऐड करूंगी, फाइल में जाऊंगी, अगर न्यूमेरिकल है अकाउंट्स का तो वो फाइल को यहाँ से लूंगी और ओपन पे क्लिक करके वो फाइल यहाँ पे बच्चे के लिए रख दूंगी, ताकि बच्चा क्या करे, यहाँ पे हेडिंग पढ़ के राइट दी आंसर फॉर दी गिवन क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, प्लीज रीड दी रूल्स एंड रेगुलेशंस या इन अटैच पीडीएफ। ऑलराइट, तो ये आपने रूल दे दिया और अब आपने यहाँ पे फाइल कोई ऐड कर ली, तो ये इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। सो आई एम राइटिंग हियर व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स, कमिंग टू सेम क्वेश्चन। So this is what my question is. What do you mean by microeconomics? Okay. And now I will ask. See here, ask is there. So I'll click on ask. Now what will happen when this question will come to student? ये student का platform है. All right. अब जब ये question आएगा, रिंकी मूलचंदानी posted a new question. What do you mean by microeconomics? Now what you can see is there is a text box where, see, this question is assigned to student and this question is due till tomorrow. But if I want to write answer today itself, microeconomics is derived from Greek word micros, which means small. Suppose I am writing this single line and I'll click on turn in. As a student, मुझे turn in पे click करना है. अगेन क्लिक ऑन टर्न इन। अब ये टर्न इन का मैसेज क्या शो कर रहा है कि मैंने मेरे क्वेश्चन का आंसर अपने टीचर को जमा कर दिया है। अब हम वापस से जाते हैं टीचर के प्लेटफॉर्म में। ओके, टीचर के प्लेटफॉर्म में हम जाते हैं, ये टीचर का स्ट्रीम है, टीचर ने ये क्वेश्चन पोस्ट किया था। ओके, ये पहला क्वेश्चन टीचर ने पोस्ट किया था, इसको क्लिक किया मैंने। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, मैंने यहाँ पे देखा कि एक पर्सन ने इसको हैंड इन किया है। जितने स्टूडेंट्स मेरी क्लास में अभी हैं उन लोगों को असाइन किया गया है, 7 लोग को असाइन किया गया है 8 में से, और एक बच्चे ने उसको करके दे दिया है, हैंडेड इन। इसलिए अब हम इस हैंडेड इन को क्लिक करेंगे। तो हैंडेड इन को क्लिक किया तो मुझे पता चल गया कि रिंकी मूलचंदानी हैज गिवन दिस क्वेश्चन का आंसर। सो in this way we can give the question and we can see the answer, but yes, it is a tedious job for us. For how long you are going to scroll down and see the answer? So it's better to go with the help of assignment, go with the help of some file, etc. Okay, so now if you want to give the marks to this particular student, let us say 5 मिले, 10 मिले, जितने आपको देने, आप 5 नंबर यहाँ पे लिख दीजिए इस पर्टिकुलर बच्चे के मार्क्स के लिए और रिटर्न पे क्लिक कीजिए और फाइनली रिटर्न पे क्लिक कीजिए। अब इससे क्या होगा, उस बच्चे को पता चल जाएगा कि मेरा रिजल्ट ग्रेडेड हो चुका है। अब मैं स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पे जा रही हूँ और वापस से रिफ्रेश कर रही हूँ। अब रिफ्रेश करने के बाद जो पहले असाइंड किया हुआ था क्वेश्चन, अब वो ग्रेडेड दिखा रहा है। सो इज इट ओके? इज इट ओके? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. So now it is graded. Now a student will come to know, yes, my question has been checked. Okay. So immediately he will go to his mail. His teacher has written the marks, and that too, uske marks यहाँ पे भी 10 में से. Yes. So you can ask the questions in this way from a student. Now moving to the next point, that is assignments. Now before doing the assignments, okay, I'll ask you how many of you have started with the rubrics assignments? Has anyone followed the concept of rubrics assignments or any assignments pattern? Yes. Okay. So we will see
we have break? 12:30. Okay, I'll just do one thing. मैं आपको अभी सिंपल वाला असाइनमेंट बता देती हूँ, देन ब्रेक के बाद हम लोग क्विज असाइनमेंट एंड रूब्रिक्स असाइनमेंट्स को देखेंगे. ऑल राइट, इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, ma'am. I think you all are with me right now. Yes, please we are ensure okay. that you are. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, we are with you, ma'am. Yeah, thank you so much. Thank you so much for watching. I'll click on create. Fine. I'll click on assignment. All right. Now assignment हम एक फाइल बनाते हैं. Now I'll show you how my institute makes the assignments. Actually, everything is not to be shown to you just for the sake I need to advertise my institute policy or rules or regulation. We are following some system. Okay, so that's why I'm showing it to you. I'll write here ACR, academic conduct record. Okay, so this is my assignment. So this is the logo, institute name, class, semester. Now assignment 1, assignment 2. Okay, so assignment 1 I'll post, I'll write date of issue also, date of submission also. So I'll simply use this word file. मतलब ये वर्ड की फाइल को मैं डायरेक्ट जाके ऐड करने वाली हूँ. बच्चा इस वर्ड फाइल को खोलेगा, इसमें डेट भी लिखी है, क्वेश्चंस भी लिखे हैं, मार्क्स भी लिखे हैं. ओके, एंड देन फाइनली ही विल फाइंड ऑल, उसको सॉल्व करना है. इस प्रकार से मैंने ये पहले ही फाइल बना के रख दी है. ठीक है, ये मैंने फाइल पहले ही बना के रख दी है. ओके, सो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे असाइनमेंट 1 देने वाले हैं. असाइनमेंट 1. फाइन. अब ये असाइनमेंट 1 है मेरा CO1 पे. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेस्ड ऑन CO1 कोर्स ऑब्जेक्टिव 1, और यहाँ पे मैं कोर्स ऑब्जेक्टिव भी लिख देती हूँ. Students will be, nowadays NAAC has asked us to follow the everything. Okay, so आपका हर एक यूनिट का कोई ना कोई कोर्स ऑब्जेक्टिव होगा जिससे बच्चे का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है और उसको आउटकम मिल रहा है. सो आई एम राइटिंग हियर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रोइकोनॉमिक्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से रहेगा. ठीक है, स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड, able to differentiate between micro and macroeconomics. All right, so suppose this is my objective which I want to get it fulfilled by teaching unit number 1, and as per the unit 1 syllabus, what I find that ki student will be able to understand the introduction of microeconomics, macroeconomics, what exactly it is. All right, and the student will also be able to differentiate between, और भी अगर कोई topics हैं तो आप उसकी line और frame कर सकते हैं. It's up to you. Now what I'll do, I'll click on add. आपका असाइनमेंट कोई न्यूमेरिकल पे है और वो न्यूमेरिकल आपने गूगल से लिया है, तो जैसे मैंने आपको मटेरियल में बताया था लिंक यूज कर सकते हैं. अगर आपका असाइनमेंट गूगल ड्राइव में रखा हुआ है तो आप गूगल ड्राइव से ले सकते हैं. अगर आपका असाइनमेंट किसी वीडियो के आधार पे है, सपोज ये वीडियो देखो इंग्लिश के टीचर्स हैं या कोई हिस्ट्री के टीचर्स हैं या कोई साइंस के टीचर्स हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट को देखो और इसके आधार पे प्रश्नों के उत्तर दो, और वो प्रश्न की फाइल आपने यहाँ पे दे दी है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं. So what we can do is, now I'll click on file again. Now I was having one assignment, I'll go to material direct. Okay, now इसमें मेरा असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट 1 आप सभी देख पा रहे हैं. ओके, इसमें लिखा हुआ है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो. इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो आई एम सिलेक्टिंग दिस असाइनमेंट. ऑल राइट, नाउ ये असाइनमेंट की फाइल आ गई. अब स्टूडेंट के पास क्या अधिकार देना चाहते हैं,
क्या स्टूडेंट आपकी दी हुई फाइल को एडिट करे? वो कभी मत कीजिएगा। क्या स्टूडेंट आपकी फाइल को देख सकता है? हाँ, ये वाला ऑप्शन हमेशा आप सर्कुलेट करके रखिए। अब क्या होगा, स्टूडेंट को पता है असाइनमेंट है, या आप ऐसा भी देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स ये चैप्टर पे है, ऐसा भी दे सकते हैं। इट्स अप टू यू। नाउ नेक्स्ट इज, ये अब किस में आता है? ये असाइनमेंट में आता है, तो हमने यहाँ से असाइनमेंट सिलेक्ट कर लिया। टॉपिक क्या है? असाइनमेंट्स। ऑलराइट, अब हम अभी रूब्रिक वाला असाइनमेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम अभी नॉन रूब्रिक क्रिएट कर रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है मैं बता देती हूँ। ये वाला असाइनमेंट है, इसमें मैंने बच्चे को कोई पैरामीटर नहीं बताया है कि बेटा तू अगर एक पैराग्राफ लिखेगा तो तुझे 2 नंबर मिलेंगे। मैंने उसको कुछ भी हाईलाइट नहीं किया है, कोई क्राइटेरिया नहीं बताया है कि मैं कैसे तुम्हारा पेपर इवैल्यूएट या जज करने वाली हूँ। I have just simply given an assignment to a student, please do it, and your assignment is based on this course objective and I want you to get it fulfilled, so please write the answers accordingly. That's it. Now this assignment is of 10 marks, I'll write here 10. Okay, now assignments are not to be asked in a single day, that we also know. So assignments are to be given for 2 to 3 days or 5 days or 10 days as per your institute permits. तो मेरे केस में 1 हफ्ते का टाइम रहता है हमारे कॉलेज में। सो व्हाट आई विल डू इज, टुडे इज 3rd, आई विल सिलेक्ट योर ड्यू डेट। ओके, आई विल आस्क द नेक्स्ट वीक 10th को दे दीजिए। और टाइम क्या है, कब तक वो बच्चे जमा कर सकते हैं? ये आपका टाइम दोनों क्लॉक फॉलो करता है, 24 वाला भी 12 वाला भी। तो सपोज आई एम आस्किंग कि रात के 11 बजे तक आप मुझे असाइनमेंट दे सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे ट्यूसडे 10 अगस्त रात के 11 बजे आ गया। अब ट्यूसडे तक वो बच्चा दे सकता है। ट्यूसडे के बाद अगर वो ये फाइल को एग्जीक्यूट करता है और मुझे असाइनमेंट पोस्ट करेगा, तो मुझे उसके असाइनमेंट पे लेट करके लिखा आएगा, लेट सबमिशन करके लिख के आएगा। या अगर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ये असाइनमेंट नहीं देता है, तो उसके नाम के आगे मिसिंग करके लिखा रहेगा। ये मैं आपको बताऊंगी जब मैं मार्क्स वाले टैब पे जाऊंगी। ऑलराइट, तो अब ये असाइनमेंट हमें असाइन करना है। आज असाइन करना है कि कल करना है? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पहले बना के रख देती हूँ, जैसे पुराने सेशन में बहुत सारे प्रश्न आए थे कि हम क्वेश्चन पेपर बना के रखें क्या और हम आगे चल के दे सकते हैं क्या, तो हाँ, आपने अपने सवालों को बना के रख, असाइनमेंट आपने बना के रख लिया। आप चाहते हैं कि कल आप इसको पोस्ट करें, ओके, तो लेकिन आपको फिर से गूगल क्लासरूम खोलने की जरूरत ना पड़े और फिर से इसको एडिट ना करना पड़े। अगर आप वो चीज से बचना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली गूगल क्लासरूम क्या करेगा, अगर आपने कोई असाइनमेंट शेड्यूल किया है, शेड्यूल मतलब पर्टिकुलर उसी तारीख पे दिखना चाहिए, ओके, उसी तारीख पे पोस्ट होना चाहिए। तो ये शेड्यूल मैंने अगर किया है, मैंने लेटेस्ट से 5 तारीख से ये असाइनमेंट विजिबल होना चाहिए सवेरे 10 बजे से। ओके, तो ये मैंने शेड्यूल अगर कल जब 5 तारीख आएगी या परसों 5 तारीख आएगी, जो अभी यहाँ पे मुझे ये स्टेटस दिखा रहा है कि शेड्यूल फॉर 5 अगस्त 10 AM, जैसे ही 5 तारीख को 10 बज जाएंगे, ये बच्चे के यहाँ पे स्ट्रीम में देखने को मिल जाएगा। ओके, ये स्टूडेंट के स्ट्रीम में देखने को मिल जाएगा। कब? 10 बजे उसको ये पोस्ट देखने को मिलेगी। तो अगर आप ऐसा शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप असाइनमेंट को शेड्यूल भी कर सकते हैं। अगर आपको शेड्यूल नहीं करना है, आप 3 डॉट्स पे जाइए, एडिट कीजिए, यहाँ से क्रॉस को कैंसिल कर दीजिए, ओके, हटा दीजिए और आप सिंपली असाइन कीजिए। ओके, आज की तारीख में आपने असाइन कर दिया और असाइनमेंट आप असाइन कर ही सकते हैं। ओके, सपोज आपको डेट ऑफ इश्यू आज की है तो आज ही असाइन कर दीजिए, डेट ऑफ इश्यू कल की है तो शेड्यूल कर दीजिए। ओके, इट्स अप टू यू। नाउ दिस मोड इज एक्टिवेटेड। अब ये क्या बता रहा है कि ये 10 अगस्त तक बच्चा दे सकता है। अब मैं स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पे जा रही हूँ। ऑलराइट, मैंने रिफ्रेश किया। ओके, अब मुझे यहाँ पे दिखना है कि रिंकी मूलचंदानी हैज पोस्टेड अ न्यू असाइनमेंट, असाइनमेंट 1। अब इसमें और क्वेश्चन में क्या फर्क है वो चीज मुझे आपको बतानी है। पहली चीज तो ये, यहाँ पे मार्क्स लिख के आ गए, ओके, ये ड्यू डेट भी लिख के आ गई, कब तक देना है, ये असाइनमेंट का फाइल भी आ गया और ये यहाँ पे CO1 भी आ गया। वहां पे भी आप क्वेश्चन 1 के लिए ये दे सकते हैं, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा।
ओके, यहाँ पे भी फाइल भी आप दे सकते हैं, ये 3 चीजें सेम रहेंगी, लेकिन क्या फर्क है वो मैं बता रही हूँ आपको राइट हैंड साइड के थ्रू। अब राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि अब जब आप स्टूडेंट से असाइनमेंट मांग रहे हैं तो आप किस तरीके से स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि यू सेंड मी अ फाइल। क्या आप स्टूडेंट को बोल रहे हैं डायरेक्टली गूगल डॉक्स क्रिएट करके मुझे भेज दो, या पीपीटी भेज दो, या एक्सेल शीट बना के भेज दो, या ड्राइंग भेज दो, तो वो ये भी यूज कर सकता है ऑप्शंस अपनी फाइल को भेजने के लिए। हम नॉर्मली अपने कॉलेज में क्या करते हैं, बच्चों को जब असाइनमेंट्स दे देते हैं तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज डाल देते हैं, या यहाँ के इंस्ट्रक्शन में ही एक मैसेज डाल देते हैं कि आपको अपनी कॉपी में असाइनमेंट लिखना है, उसका पीडीएफ फाइल बनाना है कागज स्कैनर के थ्रू, ओके, फोन में रहता है, और वो पीडीएफ फाइल आप अपने मोबाइल में सेव कीजिएगा। अब जो वो पीडीएफ फाइल उसने अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में सेव की है, तो वो ऐसे केस में या तो उसको गूगल ड्राइव पे भी वो रख सकता है अपने जीमेल अकाउंट में, ओके, तो वो क्या कर सकता है, सीधे अपने लैपटॉप में जाएगा, अपनी फाइल पे क्लिक करेगा, ब्राउज पे क्लिक करेगा, अब उसको असाइनमेंट देना है वापस से, ओके, मुझे देना है, सबमिट करना है टीचर को, तो वो क्या करेगा, अपने लैपटॉप में एक फाइल बना के रख देगा। कैसी फाइल, उसने अपने पहले कॉपी या रजिस्टर में लिखा हुआ है, लिखने के बाद उसने उन सारे पेजेस को स्कैन किया है, अब वो पीडीएफ फाइल को उसने सेव किया है अपने नाम से। हम बोलते हैं बच्चे को बेटा अपना रोल नंबर और अपना नाम लिख के वो फाइल को सेव कर दीजिए, और अब वो फाइल मान लीजिए ये है, ठीक है, मैं इसको रीनेम कर देती हूँ, ऑलराइट, आई एम रीनेमिंग इट रिंकी असाइनमेंट, ऑलराइट, एंड नाउ ये असाइनमेंट मैं मेरी टीचर को सबमिट कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अब जैसे ही मैंने ये फाइल यहाँ पे की, टर्न इन जब तक नहीं करती हूँ तब तक मेरा असाइनमेंट नहीं जाएगा। टर्न इन पे क्लिक किया, अगेन टर्न इन पे क्लिक किया, नाउ माय असाइनमेंट हैज बीन सबमिटेड टू माय टीचर। Now, how the teacher will come to know? So, what I will do, I will move to teacher platform. I'll go to stream and I'll click on this post. And now what I can see is, देखिए यहाँ पे no attachment assigned, no attachment assigned, no attachment assigned, no attachment assigned, and Rinky assignment is handed in. So, can you find a difference? Yes or no? Yes, 7 people have been assigned the job, but they have not completed it. And whosoever has completed it is known as handed in. तो अब मैं ये रिंकी गुलचंदानी के असाइनमेंट को क्लिक करूंगी सिंपल तरीके से, ऑल राइट। अब उसके बाद यहाँ पे जैसे हम नॉर्मली फिजिकल क्लासेस में क्या करते हैं, बच्चे का कॉपी ले लेते हैं, ओके, जो भी है, ये एक्चुअली ये फाइल नहीं आनी चाहिए थी, ये क्वेश्चन वाली आ चुकी है, मैंने रैंडमली फाइल सिलेक्ट की। अब जैसे आप बच्चे का असाइनमेंट देखते हैं, सपोज आपको लगता है कि बच्चे ने ये लाइन गलत लिखी है, तो आप इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए, ओके, आप क्या करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे ये प्लस साइन दिया है, आप इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए, ये बच्चे ने गलत लिखा है, आप प्लस साइन और यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं। मैं एक दूसरी फाइल ले लेती हूँ फॉर पोस्टिंग इट, सो दैट इट कुड बी अ वैलिड कर रही हूँ। अभी मैं सबमिट नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने गलत फाइल पोस्ट कर दी है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ऐड फाइल पे जाती हूँ, ओके, इसको क्लोज कर देती हूँ, एंड ऐड और क्रिएट पे जाती हूँ, फाइल में जाती हूँ। अब मैं कोई आंसर वाली फाइल सबमिट कर रही हूँ, ऑल राइट, मैं कोई आंसर वाली फाइल सबमिट कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट, जिसमें आंसर लिखा है, so that it could be very useful for me. So suppose this is the answer. Unit 1, I need to find out. Just a second. Unit 1. Suppose this is the answer. ये मेरा, मैं एक काम करती हूँ, जस्ट थोड़ा सा पैराग्राफ मैं कॉपी करती हूँ, फाइल बना लेती हूँ। ये मेरा आंसर है। अब मैंने इसको सेव किया, रिंकी असाइनमेंट के नाम से, ओके, रिंकी असाइनमेंट के नाम से पीडीएफ बना दिया और सेव कर दिया, ऑल राइट। ये मेरा फाइल है जो मेरी टीचर को दिखेगा।
अभी हम वापस से अपनी क्लास में जाते हैं, जो टीचर का प्लेटफॉर्म है, सॉरी स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म है। ये स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट देना है। ये देखिए, ये स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम पहले थे। हमने क्या करना है, ऐड और क्रिएट पे क्लिक करना है। अभी मैं वैलिड फाइल दूंगी, वैलिड मतलब जिसको हम जस्टिफाई भी कर पाए। ब्राउज पे क्लिक करूंगी, उसके बाद डेस्कटॉप में जाऊंगी, यहाँ पे फाइल है मेरी रिंकी असाइनमेंट 1, ये ओपन पे क्लिक कर दूंगी। अब क्या होगा, ये असाइनमेंट मेरा सबमिट हो चुका है। टर्न इन क्लिक करने पर अब मेरी टीचर को मेरी वैलिड फाइल मिल जाएगी। तो अब मैं टीचर प्लेटफॉर्म में जाऊंगी, ऑल राइट, एंड नाउ आई कैन सी दैट रिंकी मूलचंदानी का ये असाइनमेंट आया है और साथ ही साथ पाटिल सर का भी आया है, ऑल राइट। तो आई विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट, ओके। नाउ व्हाट आई कैन सी इज कि हाँ, अभी थोड़ा बहुत मैटर रिलेटेड है, पहले रिलेटेड नहीं था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे ने ये सारी चीजें गलत लिखी है। तो आपके पास ऑप्शन है, ये हाइलाइटर है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप हाईलाइट कीजिए जो उसने गलत किया है और फाइनली उसको लिखिए, प्लीज राइट इट प्रॉपरली फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, ओके। तो आपका ये कमेंट भी चला जाएगा और फाइनली आपको लगता है ये सेंटेंस में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक या कुछ इनकरेक्ट चीज की है, सिंपल सिलेक्ट कीजिए और ये प्लस साइन जो आप देख रहे हैं इसको क्लिक कीजिए। पहले सिलेक्ट करना है, ओके, फिर प्लस साइन पे क्लिक करना है। फिर आप ऐसे भी कमेंट देख सकते हैं, लाइक गुड आंसर, ओके, सो दैट ही और शी गेट मोटिवेटेड। तो एक असाइनमेंट पे आप जितने कमेंट्स करना चाहते हैं, जितना उसको लाल, हरा, पीला, नीला करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ऑलराइट। एंड साइड बाय साइड मार्क्स का पैटर्न भी दिया है, प्लस प्राइवेट कमेंट भी, अगर आपको स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे देना है प्राइवेटली तो आप वो भी दे सकते हैं और साथ ही साथ उसको नंबर भी दे सकते हैं। तो 5 नंबर मैंने दिए, रिटर्न पे क्लिक किया एंड फाइनली रिटर्न पे क्लिक किया। सो माय असाइनमेंट, नाउ मैंने ये स्टूडेंट का असाइनमेंट चेक कर लिया। अब स्टूडेंट को पता कैसे चलेगा कि मेरे को कितने नंबर मिले या मेरा असाइनमेंट चेक हुआ कि नहीं? तो वो स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पे हम जाएंगे, ऑलराइट, we'll go to student platform. We'll see that student has got 5 marks out of 10. So ये है हमारा basic assignment. So is it okay with you all? एक बार इसकी practice हमारी हो जाएगी after the break when we will create rubrics. Yes, ma'am. Okay, so you can take a break of, let us say, 5 to 8 minutes. Take a break and then we shall see all together. Yes, ma'am. And do not leave your meeting, I request you. Okay, kindly keep yourself Okay, ma'am. mute. Do not.